Children, Good morning, is sir. is Good evening, sir. audible बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो बेटा 26th you are having term 1 exam, chemistry exam. Actually your exams will start from 25th onwards. So chemistry exam is on 26th. Still you are having what? Only the 10 more days, isn't it? So the syllabus is for term 1 examination starting onwards some basic concepts. I will just show you better your syllabus. Do you have this PDF with you बेटा? Do you have this PDF with you? आपके पास है बेटा syllabus का PDF? So, Do you hear? Hmm. You have this PDF with you? Yes or no? Do you hear? Yes, sir. Do you have this PDF with you? Should leave it. Yes, sir. Is it visible to you? Yes, sir. Your portion for examination is what? So some basic concepts of chemistry ये हैं बेटा, ये हैं some basic concepts of chemistry. This part is there. Okay, next part is what? Structure of atom. Now you have to delete this portion from your textbook. ये आपको शेयर करता हूँ बाद में क्लास होने के बाद. Next, classification of elements, periodic properties, and total chemical bonding. There is no deletion in the chemical bonding, beta. You have to read entire the topic. But in the classification of element, you can leave these topics here. You can leave this topic, what? Significance of classification, we can delete this one. Okay. So today, I will just explain the hydrogen bonding and some diagrams about the orbital, molecular orbital beta. Okay. After that, we'll discuss about the hydrogen. Understood? So syllabus is what? After chemical bonding, redox reactions, hydrogen, organic chemistry. यहाँ तक है बेटा. So I try to complete hydrogen and redox reaction and organic chemistry also. So tomorrow also I will take the class so that we can complete the portion. Do you hear me everything? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा. Yes, sir. yes, sir. All right. So let me discuss about the diagrams. Yesterday I have told you about the electronic configurations, how to draw. That is very important for examination point. Yesterday हम जो discuss किया है ना, they're very important for. Okay. And one more thing, हमने जो कल discuss किया, एक बार उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी, ये टॉपिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा. This is what very important topic. Arranging the molecules like this. Sure, you will get some questions from this one. Okay, very important. How to arrange the bond order and bond energy. इसके बाद magnetic property है बेटा. Magnetic character, or we can get some questions बेटा. Magnetic character. There will be two types of characters. One is called paramagnetic, and other is called what? Diamagnetic. Okay. Now, when we get a paramagnetic nature, our bond order is fractional value, isn't it? If bond order is fraction. Today, मैंने आपको बोला how to calculate the bond order using a formula. ये हमने कल डिस्कस किया बेटा, isn't it? ये हमने कल डिस्कस किया ना बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में. एक टेबल भी हमने बनाया, राइट? सो व्हेनेवर वेयर यू आर गेटिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज बेटा, यहाँ पर फ्रैक्शन. सो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक है ना, 0.5.
क्या होता है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर? बिकॉज दे आर हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका भी पैरा आएगा, इसका भी, और यहां पर भी फ्रैक्शन ऑर्डर है बेटा, पैरा, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक। नाउ यू गॉट हाउ टू आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक नेचर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now one exception, two exceptions are there बेटा। ये two exceptions आपको जरूर याद रखना है। 10, when you have 10 electrons, how much bond order you are getting बेटा? Tell me. When you are getting 10 electrons, how much bond order you are getting बेटा? So 1. Sir, One. 1. 1। Here also आपको पैरामैग्नेटिक लेना है, ये एक्सेप्शन केस है बेटा, आपको बताऊंगा व्हाई इट इज। फिर यहां पर भी 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, the bond order you are not getting fractional value, right? Still it is paramagnetic. So what are the exception cases here? I'm writing for here beta. Okay, whenever a fractional bond order is there, fractional bond order, in that case magnetic nature क्या होता है? Magnetic nature, what is the magnetic nature? So paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। आपको आंसर देना है बेटा कंपल्सरी, इट इज बीइंग रिकॉर्डिंग। सो फिर से आप देख सकते हैं यूट्यूब में, चैनल भी है बेटा यूट्यूब में। आपको मैं लास्ट ईयर जो ऑनलाइन क्लास लिया सभी का वो वीडियो आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग पूरा टॉपिक्स आपको मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट में रहेगा बेटा। यू कैन सर्च फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट एवरीथिंग। नेक्स्ट एक्सेप्शन केसेस क्या है बेटा? कहां पर एक्सेप्शन केस मैंने बोला आपको? सो व्हेन यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, जनरली व्हेन यू हैव B2 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, बोरॉन है बेटा ये, इट इज अ बोरॉन मॉलिक्यूल। फॉर बोरॉन मॉलिक्यूल यू आर हैविंग पैरामैग्नेटिक नेचर, यू आर गेटिंग विद पैरामैग्नेटिक, ये याद रखो बेटा, ये एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट व्हेन यू हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल क्या है बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन्स O2 है बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के लिए भी क्या आएगा आपको? पैरामैग्नेटिक नेचर आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना? देखो, यू जस्ट ऑब्जर्व हियर दिस डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम फॉर, इसको थोड़ा ये देखो, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम है बेटा, दिस इज फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम। मैं देखो बेटा ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखो, एक मिनट। नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे को बोल सकते हैं बेटा, एटम का कॉन्फ़िगरेशन, एटम का कॉन्फ़िगरेशन कोई मेरे को बोल सकते नाइट्रोजन का? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन? So 1s2, 2s2, 2p3. वेरी गुड बेटा, 1s2, 2s2, 2p3। देखो मैंने यहाँ पर 1s लिखा है ना, राइट? तो हाउ मेनी एटम्स यू आर हैविंग इन दिस मॉलिक्यूल बेटा? हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स यू आर हैविंग? So 2. 2। Therefore here 1s I have taken and here 1, first nitrogen, second nitrogen, है ना बेटा? N1 N2, 2 nitrogens I have taken। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कंप्लीट किया। देखो यहाँ पर 1s 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 के बाद क्या लेना है आपको? 2s लेना है। देखो यहाँ पर 2s लिया। 2 बार क्यों लिया बेटा मैंने? कोई मेरे को बता सकते 2 बार क्यों लिया मैंने? So because of molecule formation हो रहा है। हाँ, देयर आर 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल, है ना? इसके बाद 2p3, देखो ये 2p3 है बेटा, ये 2p। जब फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू टेक दिस वन बेटा, 1s 2s 2p। देखो 1s 2s 2p, है ना? देखो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इन 1s? 2. So 2. यहाँ पर 2 लिया ना, देखो यहाँ पर भी 2 लिया। नेक्स्ट 2s में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सो यू हैव टेकन 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर आई हैव टेकन 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइनली 2p में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 3. 3. यहाँ पर मैंने 3 लिया, यहाँ पर भी मैंने 3 लिया बेटा। अंडरस्टूड? इन दिस आपको ऐसा डायग्राम लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहते हैं 1s 1s, 2s 2s, 2p 2p, इन दिस वे आपको लेना है।
ये लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद आप देखो दोनों मिलकर आपको 1s1 and 1s they will combine to give bonding molecular orbital. Same number we get anti bonding molecular orbital, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा 1s बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं, है ना? इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है। इसके बाद 2s में 2 electrons, here also 2s, you are having 2 electrons, total 4 electrons. This is bonding molecular orbital sigma 2s है बेटा, this anti bonding molecular orbital ये sigma star 2s. So total you are having 4 electrons, you have to fill in bonding and anti bonding like this. तो यहां तक खत्म हो गया ना, सिंपल थिंग। इसके बाद ये 2p ऑर्बिटल देखो, 3 electrons are there, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1 2 3। सिग्मा स्टार 2s के बाद व्हाट ऑर्बिटल्स वी गेट बेटा? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz वी गेट। ओके, आफ्टर ड्राइंग लाइक दैट 3 + 3 यू आर हैविंग हाउ मेनी? 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो 2 आपको ऐसा फिल करना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख, यहां से शुरू करना है बेटा। सिग्मा, देखो यहां पर लिख रहा हूं, सिग्मा 1s2, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद पाई 2px, ये है बेटा पाई 2px, 2 electrons are there here. नेक्स्ट पाई 2py इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या है बेटा? सिग्मा 2p, यहां पर 2 electrons. So this is electronic configuration. Yesterday we have discussed it. But your exam is online examination, therefore so nobody asked to draw the diagram. Diagram आपको एग्जाम में नहीं आता बेटा. If it is description, it is important, but because of online examination, it is multiple choice question, so you don't get diagrams here. But it is in the syllabus, so I have explained. Okay. इसके बाद और एक मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा जूम करता हूं। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन का कोई एटॉमिक नंबर मेरे को बता बेटा, ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन कोई मेरे को बता सकते? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन। So 1s2 2s2 2p4। यस बेटा, 1 मैं इधर लिखता हूं, 1 मिनट जस्ट। ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है बेटा। एंड इन O2 मॉलिक्यूल हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फाइंडिंग बेटा? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 16 कितना लेना? 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 16 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? सो देयर आर 2 ऑक्सीजन्स आर देयर, कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं बेटा 1s2 2s2 2p4। बट इफ यू हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज करना है, वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, ये देखो बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1s इधर लिखा, देखो 1s2 है ना, मैंने इधर लिखा 1s2, इसका भी 1s2 है, दोनों का ऑक्सीजन का मैं इधर लिखा, देखो। नेक्स्ट बात 2s2 यहां पर लिखा बेटा, 2s2 सेकेंड ऑक्सीजन का इधर लिखा मैंने। इसके बाद 2p, देखो 2p4 यहां पर है, ये 2p4 है बेटा, यहां पर भी 2p4, इधर मैंने 2p4 लिखा। तो ये तो सबको इजी हो गया ना, ये पार्ट, दिस पार्ट इज इजी ना? किसी को कोई डाउट है बेटा इस पार्ट में? सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिया, 2s2 2p4, यहां पर भी 1s2 2s2 2p4, ये तो इजी है बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो बेटा 1s if they mix what happen, 1s if they mix what happen, you will get sigma 1s, ये आएगा, और एक सिग्मा स्टार 1s आएगा, और एक सिग्मा स्टार आएगा। सिमिलरली 2s मिक्स होने के बाद एक सिग्मा 2s आएगा और सिग्मा स्टार 2s आएगा बेटा, सिग्मा स्टार 2s आएगा, है ना? इसके बाद यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2 हियर
2 हियर, 4 इलेक्ट्रॉन। आपको कैसे फिल करना है, आप वो प्रिंसिपल यूज करना है आपको। आप वो प्रिंसिपल में क्या होता है, लोअर एनर्जी से आपको हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट यू हैव टू फिल लोअर एनर्जी, देन हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी, हाई एनर्जी। सो दैट इज व्हाट आबो प्रिंसिपल यू हैव टू फॉलो। हमने डिस्कस किया ना पोस्टर्स में, व्हेन यू आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, आबो रूल फॉलो करना है, हंट्स रूल फॉलो करना है, and Pauli's exclusion principle you have to follow. So first after filling oneness you have to go for sigma s, and how many electrons we can fill maximum 2, that is nothing but Pauli's exclusion principle. What is Hunt's rule मैं यहाँ पर बताऊंगा बेटा, Hunt's rule। हाँ देखो 4 electrons are there, first electron, second electron, third electron, fourth electron, completed। यहाँ पर भी आपको 4 electrons है बेटा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है ना, तो 4 आपको फिल करना है, 1 2 3 4 हो गया ना। इसके बाद दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, यहां पर और यहां पर दोनों 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, एंड वन मोर थिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 16। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है बेटा, एक्चुअली ऐसा रहते डायग्राम कैसे देखो बेटा, एक्चुअली अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू ऑब्जर्व डायग्राम विल बी लाइक दिस, ये ऐसा होता है। कैसे होता है, 2px पाई 2py देन सिग्मा 2pz, ऐसा होता है बेटा इफ यू हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स और लेस देन और इक्वल टू 14। बट व्हेन यू हैव ग्रेटर देन 14 ये रिवर्स करना है, इसको क्या करना है, स्वैपिंग करना है बेटा, रिवर्स करना है इसको। अब क्या होगा देख, बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग। देख फर्स्ट यू आर गेटिंग सिग्मा 2pz, देन यू आर गेटिंग हियर pi 2px pi 2py you are getting है, पाई स्टार है बेटा, ये पाई स्टार है, ये सिग्मा स्टार बेटा, अंडरस्टूड यहाँ पर। अब इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको कैसे फिल करना है, 1 2, इसके 3 4, ये देखो बेटा थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो, थर्ड यहां पर, फोर्थ है ना। तो दिस इज व्हाट हंट्स रूल बेटा। After half filling, I'm pairing now here. I'm electrons pairing here. I'm doing pairing here like this. So कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7th electron देखो, 8th electron देखो। Now this is equivalent to half. If I, is it correct if I fill like this? If I fill the 2 electrons here, is it correct beta? Is it correct? No sir. No. Why? Because Hunt's rule आपको फॉलो करना है। तो the correct actually देखो बेटा, you have to fill only 1 electron, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन को फिल करना है बेटा, अंडरस्टूड। नाउ अब देखो यहां पर एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा, यू आर गेटिंग ओनली बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा, So 2. 2। मैं जो आपको बताया it should be diamagnetic, मैंने जो आपको बताया, but if it is only fractional value it should be magnetic nature, otherwise it should be diamagnetic nature। But if you here better unpaired electrons are there or not, yes, unpaired electrons are there here, so definitely it is about paramagnetic। So now when you can call it a paramagnetic nature, if you have unpaired electrons, fractional bond order is not correct to identify magnetic nature। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखो बेटा, मेरे को बोलो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, यू जस्ट ऑब्जर्व द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक नेचर इट हैज। So diamagnetic. Why बेटा, आर यू हैविंग एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन हियर, यहाँ पर No sir. पेड इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पर भी पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन। So total nitrogen molecule is having no unpaired electron. There is no unpaired electron. ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा, why nitrogen is diamagnetic nature? Because it is not having any unpaired electron. There is no unpaired electron. But why oxygen is paramagnetic nature? Tell me बेटा। Sir, having unpaired electron. हाँ, unpaired electron है बेटा इसमें। Even you draw boron molecule बेटा, ड्रॉ बोरान मॉलिक्यूल, बोरान का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, मैं इधर आपको दिखाता हूं, बोरान का कॉन्फ़िगरेशन, B2 मॉलिक्यूल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा, है ना,
इट इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यहाँ पर 2 गए, 4 हो गया, 6 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है बेटा, बिकॉज ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स यू आर हैविंग इन बोरान मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 हो गया, देन 4 6 8 एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव टू फिल। कहां फिल करना है, फिल करना है ना, 1 हियर एंड 1 मोर हियर। अब देखो, इज हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट नॉट, जस्ट here and here unpaired electron. Even boron also having unpaired electron. देखो 2 4 6 8 9th electron 10th electron, 10 electrons are completed. Here unpaired electrons are there. Okay, so boron is what, paramagnetic. So if you want to find out the magnetic nature, आपको diagram draw करना है, then only you can easily find out whether you're having unpaired electron or not. But आपको मैंने एक शॉर्टकट, यहां पर देखो मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया। वाई एग्जामिनेशन एवरी टाइम नो डायग्राम ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा ना आपको, तो इसलिए मैंने एक टेबल दिया बेटा। ये टेबल आपको देखकर इजीली आप इजी हो जाएगा बेटा। इफ यू हैव एनी फ्रैक्शनल नंबर इन बॉन्ड ऑर्डर, इट इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर। इफ यू डोंट हैव द फ्रैक्शनल नंबर, इट इज कॉल्ड व्हाट, डायमैग्नेटिक। इट इज अ डायमैग्नेटिक, 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 0 डायमैग्नेटिक, 1 डायमैग्नेटिक। बट यहां एक्सेप्शन केस है बेटा, and here 3 diamagnetic, 2 diamagnetic. It is also exception case. Understood? Sure, you will get 100% questions from this topic. Magnetic nature में आएगा, bond length में भी आपको आएगा। ये bond length में, bond energy, bond order में, electronic configuration. Sure, you will get questions from this topic. किसी का कोई डाउट है? No, sir. Now, आपका टेक्स्ट बुक में आप पढ़ सकते हैं बेटा, यहाँ पर हाउ यू आर गेटिंग दिस वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम मॉलिक्यूल। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया बेटा, व्हाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट बेटा। So because its bond order is 0. 0. Whenever you get bond order 0, it never exists. Why? Bond order is nothing but bonds. 0 means between helium and helium there is no bond. There is no bond. It never exists here. Simple thing it is. Okay. So these are the remaining molecules. You just read this one. It will be very, very. Ne2 is possible, beta. Neon 2 is possible. No, sir. Is it possible? Why? And here also we are getting bond order is what? Simple thing. It is a 0. That's it. Easily आप बता सकते हैं, है ना? So with this what happened, have completed what? Molecular orbital theory. तो application part थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना है. Next is what? Hydrogen bonding. This is a small topic. It is very simple also. First of all, we'll make a definition for this one. This is a definition, hydrogen bonding. देखो बेटा, what is the meaning of hydrogen bonding? So generally in hydrogen bonding, there will be Coulombic forces. Better. What type of forces we are having in this one? Coulombic forces, also called what? Electrostatic forces. Both these. What type of forces we can call this one? Coulombic forces, which are very weak forces. Okay, I can call this one what? Coulombic forces or electrostatic force. Now these forces can only operate when you have more electronegative like fluorine, oxygen, nitrogen. Okay. Now tell me better, hydrogen bonding is not possible. In which case? A, fluorine, B, oxygen, C, chlorine, D, nitrogen. In which case hydrogen bonding is not possible, better? So fluorine. Sir, fluorine. Which case hydrogen bonding is not possible? Option A, option C, option D. So A. Sir, A. Not possible, I am asking. देखो, hydrogen bonding is only possible with more electronegative atoms like fluorine, oxygen, nitrogen. Only these three atoms can form the hydrogen bond. Only these can form hydrogen bond. Right? अब मेरे को आंसर बताओ.
Sir, C. So C. Sir, C. C will not form. ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा बेटा. So hydrogen bonding is only possible with fluorine, oxygen and nitrogen. देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग only possible with what? With what? Fluorine, oxygen, nitrogen. Right? Next. इसके बाद what is the definition? देखो मैंने एक काम करता हूं बेटा, यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड लेता हूं ना, सिंपली आपको एक्सप्लेन करने के बाद डेफिनेशन बताऊंगा. HF है ना, ऐसा लिख सकते हैं HF मेरे को, HF मैंने 4 HF मॉलिक्यूल लिया बेटा. आई हैव टेकन 4 HF मॉलिक्यूल, राइट. अब देखो कोई बता सकते पॉजिटिव कहां पर आएगा, नेगेटिव कहां पर आएगा? Sir, positive is H and negative is F. Very good beta. Why? Because hydrogen is less electronegative, we get positive over there. Fluorine is more electronegative, we get negative over there. Same case. So hydrogen positive, fluorine negative. Hydrogen positive, fluorine negative. Why? Because fluorine is what? More negative, more electronegative. And hydrogen is what? Less electronegative. Sure, we get here, isn't it? Positive on hydrogen. So this will get a positive character. This will get a negative character. मैंने डेल्टा मीन्स पार्शियल बॉन्ड बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मैंने ऐसा लिखा. अब देखो बेटा यहां पर पॉजिटिव है बेटा, these are different molecules are same but that I have taken number of molecules. I have taken how many molecules? 4. ये दोनों बॉन्ड है बेटा, इस दोनों में, ये दोनों पे कुछ बॉन्ड है और ये दोनों में कोई बॉन्ड है बेटा, बताओ. ये दोनों में बॉन्ड है बेटा, जल्दी बताओ मेरे को. Yes, sir. यहाँ ये दोनों में कोई बॉन्ड है अभी है बेटा? इसमें जो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ है इस दोनों में? No, sir. No. एम्प्टी स्पेस है ना बेटा दोनों में, क्योंकि दे आर मॉलिक्यूल्स. बट हियर नेगेटिव चार्ज वी आर हैविंग बेटा एंड हियर आर हैविंग पॉजिटिव. केमिस्ट्री डेफिनेटली ऑपोजिट चार्जेस व्हाट हैपन बेटा, बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस क्या होता है बेटा इस दोनों में? So attraction. अट्रैक्शंस होते हैं ना, ये दोनों में अट्रैक्शंस हो जाएगा, इसमें भी अट्रैक्शंस हो जाएगा. यहां पर बॉन्ड है बेटा, एक कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर. दिस इज ए कोवेलेंट, दिस इज रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड बेटा. बट हियर बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस यू आर गोइंग टू गेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहां पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आएगा, यहां पर भी आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा. Compared to this bond, this is strong bond better. This is strong because it's a covalent bond. But this bond is what actually? Weak bond. Weak bond. Why? Because it's a partial attraction forces, electrostatic forces, which is very weak electrostatic forces. So अब देखें एक बार definition देखेंगे बेटा. You just read the definition all of you in your text. Hydrogen bond can be defined as electroforces which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of other molecule. This is called definition. देखो एक बार फिर से देखो बेटा, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, देखो हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल है ना. यहां पर फिर से देख, मैं लिखता हूं बेटा, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, hydrogen of one molecule, and more electronegative atom like fluorine bond. This is called hydrogen bond. कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बेटा, ये दोनों में लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन नहीं बेटा, ये क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है ना. यू टेक वन मोर एग्जांपल, मैं एक और एक एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, वाटर देता हूं, H2O. H2O, ये बेटा H2O, H2O. अब मेरे को बताओ बेटा, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, दिस नॉर्मल कोवेलेंट, दिस आर ऑल नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. अब देखो यहां पर ऑक्सीजन में नेगेटिव कैरेक्टर आएगा, हाइड्रोजन को पॉजिटिव आएगा. सिमिलरली नेगेटिव विल ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन. अब मेरे को बताओ यहां पर एक आएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर भी आएगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
Yes, sir. the hydrogen bond Yes. objective. So one more example आप ले सकते हैं NH3. NH3 में भी आएगा, तो जरूर आएगा NH3 में, क्योंकि I told you with fluorine, with oxygen, with nitrogen is positive. यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा, हाइड्रोजन अमोनिया का you can write like this. One more hydrogen. One more I can hydrogen. ना यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा आपको, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा. Now here this also can form hydrogen bonding. Now nitrogen, here also it can form. So यहाँ पर आपको depends upon number of hydrogens you are having. 3 hydrogens you are having, so one molecule can form 3 hydrogen bondings. You are having here in water 2 hydrogens are there, one molecule can form 2 hydrogen bonds. In HF only 1 hydrogen is there, it will get only 1 hydrogen bonding in 1 molecule actually. Now here when you come to again this topic, hydrogen bonding is only because of more electronegative atoms only. This only with fluorine, oxygen and nitrogen only. This is the example you are given in the textbook. आपको textbook में A दिया बेटा. इसके बाद there are 2 types of hydrogen bondings बेटा. यहाँ पर 2 टाइप रहते हैं बेटा. One is inter, है ना? Second is called intra. 2 है बेटा. Inter means between. इसको between बोलते हैं बेटा. ओके. इंट्रा मीन्स व्हाट? विथिन में होता है. एक एग्जांपल दिखाता हूं बेटा आपको इंटर के लिए, है ना. देखो मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर. ये इंटर होते हैं बेटा. इसका क्या बोलते हैं? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. व्हाई? बिकॉज दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल बिटवीन द मॉलिक्यूल और नॉट. टेल मी करेक्ट और नॉट? बिटवीन द मॉलिक्यूल और नॉट. ये क्या है बेटा? इंटर है या इंट्रा है बेटा? वाटर का जो कोई बोल सकते हैं वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Sir, intra. वाटर का इंटर ओनली. व्हाई इंटर? बिकॉज बिटवीन द मॉलिक्यूल. इसको क्या बोलते हैं? इसको भी इंटर बोलते हैं बेटा. इसको भी क्या बोलना है आपको? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलना है आपको. व्हाई? बिटवीन द मॉलिक्यूल. इट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल. मैंने जो लिया HF, H2O, NH3, सारी what happened? इंटर है बेटा. इंटर because they are between molecule here. Between the molecules it is happening. Between the molecule it is happening. But in the case of second type, if you observe intra, this type if you observe, that is within the molecule. इसमें आप एक ही 1 molecule हो रहा है बेटा. आप यहाँ पर कितनी molecule लिया आपने? n नंबर लिया. You can take n number, but in the intra आपको कितना मॉलिक्यूल लेना है बेटा? ओनली 1 मॉलिक्यूल आपको लेना है. देखो एक एग्जांपल देखो बेटा. ये एग्जांपल, ये इंट्रा है बेटा. इसमें कितनी मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? ओनली 1 मॉलिक्यूल. विद इन द मॉलिक्यूल यू गॉट. ये आपको मैं पीडीएफ में दिखाता हूँ बेटा. मैं ड्रा करता हूँ इसको, यहाँ पर ट्राई करो. अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसा. इसे बेंजीन, ओके. C डबल बॉन्ड OH. नेक्स्ट यहां पर OH. देखो हाइड्रोजन का पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, है ना. ऑक्सीजन का क्या रहेगा? नेगेटिव कैरेक्टर रहेगा. ये दोनों में क्या हो जाएगा? अभी देखो ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा. 1 मॉलिक्यूल. इसको बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं बेटा. सैलिसाइलिक एसिड, है ना. 1 मोर आई विल टेक. सैलिसाइल एल्डिहाइड भी आप ले सकते हैं. C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH. यहां पर भी OH. यहां पर हाइड्रोजन का पॉजिटिव क्या? यहां पर देखो, एक बार इसको रिवर्स करेंगे. यहां पर OH, यहां पर C डबल बॉन्ड OH लेता हूं. This is only 1 molecule. The molecule name is called salicyl aldehyde. Salicyl aldehyde, है ना. यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आएगा. This is negative character. This is positive character. Now this is within the molecule you are getting hydrogen bond. मैंने यहां पर 2 molecule नहीं लिया बेटा. Only 1 molecule I have taken. You got hydrogen bonding here. Which one is intra बोलते हैं इसको. It is also 1 molecule I took here.
It is also what? Inter. Now I think you got understood what is the difference between the intra and the inter. So आपका जो टेक्स्ट बुक में दिया बेटा वो एग्जाम्पल आर्थोनाइट्रोफिनोल, ये एग्जाम्पल मैंने इधर नहीं लिया जो पीडीएफ में, वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया। ये और एक एग्जाम्पल नाइट्रोफिनोल है बेटा, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव कैरेक्टर, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर, दोनों पे क्या आ रहा है बेटा? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So with this what happened, hydrogen bonding is also completed. So last में आपको थोड़ा एक्सरसाइज इसमें आप बोलता हूँ बेटा, थोड़ा एक बार देखो, ये आप कर सकते हैं ना 4.40, what is mean by bond order? The number of bonds between the two bonding atoms. Calculate the bond order for nitrogen, O2, O2 plus, O2 minus. फार्मूला क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ electrons in BMO minus number of electrons in ABMO divided by 2, ये आप यूज कर सकते हैं। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी मैंने कंप्लीट किया। इज इट वीकर स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल्स फोर्सेस बेटा? इज स्ट्रॉन्गर है बेटा, इससे तो कंपेयर कर तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वान डर वाल्स फोर्सेस आर वीक फोर्सेस जनरली। हाइब्रिडेशन इन केस ऑफ PCl5 मैं ऑलरेडी आपको बताया, ये sp3d है बेटा, इसमें एक्सियल बॉन्ड्स रहते, इक्विटोरियल बॉन्ड्स रहते, और एक्सियल बॉन्ड्स थोड़ा लॉन्ग क्यों रहते? ये है ना एक्सियल बॉन्ड्स, ये तीन है क्या बेटा? इक्विटोरियल, इसको इक्विटोरियल बोलते हैं बेटा, ये एक्सियल बोलते, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहते हैं बेटा, दे आर वेरी लॉन्ग बिकॉज देयर रिपल्शंस इफ यू ऑब्जर्व मोर है ना, तो लॉन्ग रहते हैं इसको। Now what write the significance of plus minus shown representing the orbitals में दो साइन रहते हैं ना बेटा, वो क्यों होता है ऐसा? That is because of what? Positive overlapping and negative overlapping. Compare the relative stability of the following species and indicate the magnetic property. इसको मैंने आज कंप्लीट किया बेटा। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा? 16, O2 प्लस में 15, O2 माइनस में 17, O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, प्रॉपर इजीली आएगा बेस्ड अपॉन द टेबल। नाउ यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन द Be2 मॉलिक्यूल, डज नॉट, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, आपको एक्सप्लेन करना है बेस्ड अपॉन हाउ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने क्या बोला आपको? दे शुड हैव सेम एनर्जी, है ना बेटा, दे शुड सेम एनर्जी एंड दे हैव सेम सिमेट्री आल्सो। px will combine with px only, है ना? Is it possible बेटा px py से combine करते? Impossible. Why? Because x is different axis, y is on different axis बेटा। If you take axis here, if it is x axis, now y will be what on this axis? They will not combine. X will combine on x only, like this. Y will combine on y only, like this. These two will combine like this. And explain the formation of hydrogen bonding, ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सिग्मा पाई बॉन्ड भी हमने डिस्कस किया, है ना? नेक्स्ट इसमें आप देखो, which of the hybrid orbitals are used to the carbon atoms in the following molecule? देखो हाँ, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, only one bond is there, so compulsory will be what? Hybridation sp। यहाँ पर कितनी पाई बॉन्ड्स हैं बेटा? कोई मेरे को बता सकता है? how many pi bonds having here? यहाँ पर how many pi bonds you are having बेटा? Yes, you hear me? So 1. 1 है ना? तो देखो यहाँ पर तो 1 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है मेरे बेटा। यहाँ पर देखो वन थिंग, सिंपल थिंग को बताऊंगा बेटा। इफ यू हैव, एक मिनट, जस्ट रिमूव दिस वन, यहाँ तो यहाँ पर देखो बेटा, वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई दिस। कार्बन कार्बन ओनली सिग्मा बॉन्ड हैविंग, ओनली सिग्मा बॉन्ड, इट विल बी sp3 बेटा, दोनों sp3 होता है दोनों। बिटवीन कार्बन यू हैव 1 पाई बॉन्ड, यार 1 पाई बॉन्ड यू आर हैविंग, है ना? इट विल बी sp2, दोनों sp2, ये sp2 हो जाएगा और ये भी sp2 हो जाएगा। ये क्या होता है? sp3 और ये sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट
व्हेन कार्बन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, ट्रिपल, यहाँ पर कितनी पाई बॉन्ड है बेटा, कोई मेरे को बता सकते हैं जल्दी? So दो. Two pi bonds, sp hybridization. This will be sp and this will be sp. One example, one more I will. 3 कार्बन्स लेता हूं बेटा यहाँ पर ना, मेरे को बताओ ये फर्स्ट कार्बन है बेटा, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन विच हाइब्रिडेशन बेटा, एनीबॉडी? फर्स्ट कार्बन Sir sp2. which hybrid? Very good, one pi bond is there. Third carbon, third Sir carbon, sp2. sp2. What about second carbon? One is here, second is here, so it will be sp. इसको क्या बोलते हैं बेटा? अल्लीन बोलते हैं बेटा, अल्लीन, आलीन, अल्लीन बोलते हैं इसको, CH2 CH2. In this way we can easily identify. So अब देखो एक बार एक्सरसाइज देखो बेटा, यहाँ पर definitely both are having here. In this case if you observe here, now यहाँ आपको पाई बॉन्ड ही नहीं है इसमें, have any pi bond here, so all are having sp3 only. यहाँ पर देखो फर्स्ट कार्बन है बेटा, सेकंड का, अब मेरे को बताओ फर्स्ट कार्बन इज व्हाट हाइब्रिडेशन इट इज हैविंग? Sir sp2. फर्स्ट कार्बन बेटा, Sir sp3. sp3 because pi bond, no? Second, third both are having pi bond, therefore this is sp2 है बेटा, ये भी sp2 है बेटा, but what sp3 है, इसमें तो कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है आपको, तो आर व्हाट हैव व्हाट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. देखो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देते, बट इट इज हैविंग ए पाई बॉन्ड बिकॉज यू हाउ टू राइट लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड OH लाइक दिस, दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर है, किसका? D का स्ट्रक्चर है बेटा. तो यहाँ पर आपको कोई पाई बॉन्ड है बेटा, तो दिस इज sp है बेटा, एक पाई बॉन्ड इधर है बेटा, 2 bonds means one बट पाई बॉन्ड, तो इट इज sp है ना. लास्ट ये देखो CH3 COH, इसको कैसे लिखना है आपको? CH3 C डबल बॉन्ड OH. देखो यहाँ पर आपको sp2 कार्बन मिल रहा है, यहाँ पर आपको sp3 कार्बन मिल रहा है. दैट इज व्हेन यू गेट CHO sp2 कार्बन बेटा, व्हेन यू गेट COOH sp2 कार्बन इट इज. ओके, इसके बारे में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा आएगा, वहां पर आपको इन डिटेल हो जाएगा बेटा. दिस इज अबाउट व्हाट केमिकल बॉन्डिंग बेटा. Just 5-10 minutes I will take hydrogen compounds also, so only a little bit topic it is, this simple topic it is. Okay, just 5-10 minutes I will complete small topic of hydrogen compound, very short. So the next chapter we are going to discuss is what a hydrogen and its compounds better, right? So the topic is what? Hydrogen compounds, hydrogen. Generally atomic number of hydrogen is 1. So its position is what? Can you tell me what is the position of hydrogen in the periodic table? Periodic table में इसका position क्या है, कोई मेरे को बता सकते हैं? Which period it, which group it is, which block it is, which period it is? Sir group 1 and period 1. No, it is first period beta. Of course it is a first period, but which group it is we can't say beta. It is not belongs to first A, or it not belongs to first group. It does not belongs to alkali metals. Only based on electronic configuration they placed in this group actually. But first A group elements are metals, whereas hydrogen is non-metal. There are very different properties are there. So that is the reason the position of the hydrogen still is uncertain beta. You cannot say it is a first A group element. You cannot say it is a first group, but you can say it's a first period. Okay, so that is main thing actually. So this is important thing beta. So you have to remember this one. Hydrogen could not be placed in the first group element because of their abnormal properties. Only it is placed because of what? Electronic configuration. Because it has one electron in the outermost shell. That is, it is placed in where? Isn't it? First A group. Hydrogen can form no positive, just like lithium. That is the reason they are placed in the alkali metals. But remaining cases, if you observe here, it has very high ionization enthalpy. When you compare with lithium, the ionization enthalpy of hydrogen is what? Very high beta. We cannot place it. Generally, first A group elements का जो ionization है ना बेटा, that is what very low. But hydrogen का कितना रहते हैं? Very, because here it is near to the nucleus. इसके लिए. तो देखो यहाँ पर लिथियम का जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है बेटा, इसका ionization enthalpy कितना है बेटा? 520. But what about hydrogen? 13 to 2. कंपैरिजन नहीं है ना.
सो फर्स्ट ये ग्रुप एलिमेंट का, तो लिथियम एलिमेंट का आयनेशन एंथैल्पी आप लिए तो 520 किलो है बेटा, बट हाइड्रोजन इज व्हाट 13-12 किलो. So how do you place in first year group element? Okay, and one more thing, first year group element, do they can form diatomic molecule beta? Lithium can form diatomic molecule is no, but hydrogen can place like this, isn't it? So when you compare this diatomic, say it is existing just like halogens here, chlorine Cl2, fluorine F2, I2, Br2. So when it's forming diatomic molecule, it's resembling what actually halogens को resemble कर रहे हैं बेटा. It's resembling what halogens actually. So in this way, what happened? So the placing of hydrogen in periodic table is very difficult. Still now it is uncertain only, right? Next, occurrence. If you observe here, what happened better? Occurrence. If you observe here, so most of the universe is made upon by the hydrogen only, isn't it? The sun is made upon by the hydrogen. So it is actually in the earth crust, it is abundant element, but not very high, not like oxygen here. Okay? It is abundant element, but not very high. Now here, if you observe here, but isotopes बेटा, या तो यहाँ पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, यहाँ तक यहाँ आप क्वेश्चंस आएंगे बेटा. Isotopes of hydrogen. So this is the first isotope we are calling as a protein बेटा. Second को हम ड्यूटीरियम बोलते हैं. यहाँ पर एक बार देखिए, हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, है ना. सेकेंड 1D2 इसको बोलते ड्यूटीरियम बोलते हैं, है ना. एंड 1T3 इसको बोलते हैं ट्रिटियम बोलते हैं बेटा, है ना. Among these three, this tritium is what radioactive. It is a radioactive. एक एग्जाम क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा, which isotope of hydrogen is radioactive? Tritium is a radioactive. It's unstable. इसका परसेंटेज भी 0.00001% रहता है. मोस्टली 99% क्या रहते हैं बेटा? प्रोटियम रहते हैं. प्रोटियम, है ना, प्रोटियम. इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम में सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स so same. Same. सेम रहते. प्रोटॉन्स So Sir, different. same. So different. नहीं बेटा, प्रोटॉन्स भी सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम है. Yes sir. डिफरेंस कहाँ रहते हैं बेटा? न्यूट्रॉन्स So में. neutrons. अब देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने रहते हैं बेटा प्रोटियम में? So प्रोटियम zero. में कितना? 0 रहते हैं बेटा. कितने रहते हैं ड्यूटीरियम में? 2 So minus 1 कर दो. 2 minus 1 2. The number of neutrons in the tritium 2 है बेटा. So ये याद रखो बेटा, ये क्वेश्चन आएगा आपको. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, राइट. नेक्स्ट ये है बेटा, थोड़ा इसका कंपैरिजन है. ये परसेंटेज है बेटा, है ना. जो परसेंटेज है, ये प्रोटियम हाइड्रोजन कंटेन्स 0.005% ऑफ ड्यूटीरियम, है ना. तो 99.99% क्या होता है बेटा? प्रोटियम है बेटा. Protium. 0.01% is what? Isn't it? 10 to the power of 8 atoms. 1 of 10 to the power of 8 atoms. 18 atoms will be tritium. Okay. So tritium is very less concentration. अगर आपके पास 10 to the power of 18 atoms है बेटा, उसमें एक क्या रहते हैं बेटा? ट्रिटियम रहते हैं. तो there's a concentration is very negligible actually. Almost what? Negligible. ये थोड़ा differences है बेटा, हाइड्रोजन का, ड्यूटीरियम का, ट्रिटियम का. परसेंटेज देखो बेटा 99.9985. इसका देखो 10 to the power of -15, वेरी लेस परसेंटेज. नेक्स्ट एटॉमिक मास बेटा 1.08 इंक्रीजेस. व्हाई एटॉमिक मास इंक्रीजिंग बेटा? मेरे को कोई बता सकते हैं व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? So because of the increase in the number of neutrons. Very good बेटा. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ मास इंक्रीजिंग, है ना. दैट इज द रीजन. मास इंक्रीजेस बेटा, melting point increases, boiling point increases, density increases, even enthalpy of fusion increases. Everything is increasing. देखो, everything is increasing. Everything is increasing. But internuclear distance will be same बेटा. ये याद रखो बेटा. Internuclear distance between what? Nucleus distance बेटा. ये same रहेगा because of electron same है सभी. That is the reason actually, है ना. So these are some comparisons. इसमें आपको इतना ज्यादा नहीं. ये preparation आपका
सिलेबस नहीं है बेटा, इट्स नॉट इन द सिलेबस, ये आपका सिलेबस में नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट देयर। देखो एक बार आपका सिलेबस में देखो, हाँ हाइड्रोजन डिलीटेड पोर्शन देखो, प्रिपरेशन, एक मिनट, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नॉट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं है। तो आपका क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, अकरेंस, आइसोटोप, यहां तक आज हमने कंप्लीट किया बेटा, है ना। ये हाइड्रेट्स आयोनिक कोवेलेंट में कल डिस्कस करता हूं, है ना, कल कंप्लीट करता हूं बेटा, हाइड्रोजन कंपाउंड्स आपको कल कंप्लीट करवाता हूं। तो दिस इज द टुडे सेशन बेटा। टुडे सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, मेरे को कोई बता सकते हैं व्हाट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड? That hydrogen bondings. फर्स्ट व्हाट, मॉलिक्यूलर डायग्राम्स, है ना, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर वी हैव डिस्कस्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी हैव डिस्कस्ड, इसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज भी किया हमने। नेक्स्ट अभी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप। तो यू हैव टू रीड अप टू नाउ, रीड टुडे whatever topics we have discussed, read today, because exams start, we're going to start from 20, our chemistry exam is 26th, exams will be starting from 25th onwards. So आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस आज ही कंप्लीट कर दो बेटा, ताकि आप एग्जाम से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा।